اس کے گلوبل متعلق بھائی آپ کی شاید بٹ باری صاحب آپ آئے گی مجھے تو ایک آپ منٹ کو اجازت جواب دیں گے؟ دینے کی اجازت ہوگی جب آپ کی باری آئے گی. نہیں بٹ صاحب یہ ابھی شارٹ جو ہے ریبٹل ہوتا ہے. بٹ صاحب کسی کومنٹ کا نا شارٹ ریبٹل دے سکتا ہوتا ہے بندہ جو آپ کے گروپ میں بیٹھا ہوتا. تو اپنی بات باری اتنی دے ہے سکتا ہے کہ میرا منصور صاحب ان کو ایک بولنا اپنی امیجنری اور ایک اپنی باری خیالی کی دنیا بات میں کریں. رہ رہے دوسرے ہیں دوست بھی جس بیٹھے میں ہوئے یہ ہیں کہہ رہے ہیں آیت میں نے رکھی تھی. آیت میں نے جی اس پیارے لیے نہیں رکھی کہ کوئی بھائی نیا چینل اوپن کرنا ہے یا کوئی نئی بات ہے. آیت کی آپ کا روشنی میں نقطہ آ گیا ہے فیصلہ گلوبل ہو بھائی, چکا. جزاک اللہ. جی شکریہ. سندھو سیالکوٹی بھائی ابھی آپ کی باری ہے, آپ اپنی باری جی پہ بات کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے نا اس میں 4-5 لوگ فریق ہیں. ایک جج صاحب اور 2 وہ جو فریقین تھے اور 2 گرانٹر میں اور عامر نذیر صاحب. یہاں پہ آ کے یہ کہنا کہ یہ ہے آپ کی جماعت احمدیہ یا یہ ہے آپ کا, یہ بہت ایک گھٹیا سوچ ہے. اگر ہم کسی شخص کو لے کے کہیں کہ یہ ہے اسلام تو یہ بھی ایک گھٹیا سوچ ہے. اس لیے یہ سب 4-5 لوگوں کے انفرادی معاملات ہیں, ٹھیک ہے. ان پہ جو بھی ان کے اپنے بیان ہیں وہ ان کے ذاتی حیثیت میں بیان ہے یا ذاتی اس شخصیت پہ آپ تو میری یہ استدعا ہے کہ اس بیان بازی سے جو ہے نا وہ گریز کیا جائے, ٹھیک ہے. میں نے پہلے دن آ کے کہہ دیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو پیمنٹ مل جائے گی. جو میرا دوسرا موقف ہے وہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ دنیا میں مسلمہ اصول ہے کہ ریویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ریویو جج صاحب بھی مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر دونوں فریقین ریویو پہ راضی ہیں تو میں ریویو کر لیتا ہوں. اب ان کو اخلاقی طور پہ ہی آگے آنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم تو سچے ہیں, ہم میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ہماری طرف سے آپ ریویو لیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر 7 دن کے اندر اندر یہ ریویو نہیں مانتے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ان کی اخلاقی شکست ہے, ٹھیک ہے. پیمنٹ ان کو پھر بھی ودن 7 days ہو جائے گی. وہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی بات ایسی ہے جیسے ہاتھ میں دے دی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کی جماعت ہے, یہ ایسے تیسے. یہ جو چھوٹی سوچ کے مالک لوگ ہیں نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی عامر نذیر صاحب آپ کی باری ہے, آپ کے سگنل ریڈ ہیں, آپ بات کریں ابھی. میری اب آواز آ رہی ہے نمبر پہ سدھو صاحب کی آواز ابھی بھی ریکارڈ کر لیں کیونکہ انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے اور ابھی 1 دن گزرا ہے. تو حالات جو ہیں وہ کتنی کروٹ لے چکے ہیں اور کتنی لیں گے واللہ عالم. ان کی آواز ریکارڈ رکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مست سوچ اور اخلاقی طور پر گراوٹ, یہ آپ نے یا میں نے تو نہیں نا فیصلہ کرنا, ایک بندے نے, کہ ہم میں سے اخلاقی طور پر گرا ہوا کون ہے جو اخلاقی طور پر پستی کا مظاہرہ کر رہا ہے, کون ہے جو غلط بات کر رہا ہے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا آپ پر ہنس رہی ہے. کہ بات چل رہی تھی میر صاحب کے 600 یورو کی کہ میر صاحب نے ڈاکٹر احمد دیدات پر الزام لگایا اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا. اب ہم ان سے 600 یورو کا تقاضا کر رہے تھے, بیچ میں یہ بندہ آ گیا جو پہلے بھی 2-3 دفعہ آیا ہے شاہد بھٹی صاحب کی براڈ پہ, اور کہنے لگا کہ بھٹی صاحب میرا کچھ کرو, میرا ₹1,00,000 کا کیس ہے وہ حل کر دیں. اب شاہد بھٹی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو اس لڑکے کو جانتا نہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جماعت احمدیہ سے اس کا تعلق ہے, پہلی دفعہ ان کی براڈ پہ گیا. انہوں نے کہا لو جی کرو جی, کوئی عامر صاحب اس کا فیصلہ کرو, آپ تو گرنٹڈ ہیں ان پیسوں کا. میں نے کہا بالکل میں آج بھی گرنٹڈ ہوں, لیکن پیسے تو زیادہ رسول نے جیتے ہوئے ہیں. کہتے ہیں فیصلہ کراؤ اسے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جج طے ہو گیا. اب جج نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ جج اپنے فیصلے پر ریویو کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہار گئے ہیں, فیصلہ ان کے خلاف آ گیا ہے. اب یہ جج کو کہتے ہیں ریویو کرو. 2 گھنٹے جج کے پاؤں میں پڑے رہے ہیں سارے 1 سے لے کر 100 تک, اور جج انکار کر رہا ہے کہ بھائی ریویو کی میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے, نہ کوئی ریویو کی میرے اور آپ لوگوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی, نہ آپ آپس میں کوئی اس طرح کا شرط آپ نے رکھی ہوئی تھی کہ ریویو ہوگا. میں کیسے کوئی آپ پر فیصلہ اپنا تھوپ سکتا ہوں کہ بھائی ریویو ہوگا؟ ریویو تو آپ دونوں کی مشاورت سے ہو سکتا ہے. آپ دونوں چاہیں نئے سرے سے میں کیس سن لوں گا, جس طرح پہلے سنا مجھے پھر سنا لو. تو نئے سرے سے کیس سنانے کے لیے دونوں فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہے. اگر دونوں چاہتے ہیں
कि रजामंद हों, तभी सुना जाएगा ना, तभी वो सुनेंगे। तो जो बंदा केस जीत चुका है वो क्यों राजी होगा कि नए सिरे से मैं शक निकालूं? जीत के ऊपर उसको क्या मिलना है? जीत तो पहले ही उसको मिली हुई है। ऐसा बेवकूफ कौन है? अगर आप हमारी जगह होते और आप जीते हुए होते तो आप जाते रिव्यू की तरफ? कभी भी नहीं जाते। भाई हमने कहीं जीता, हमें क्या जरूरत है? तो अखलाकी तौर पर गिरी हुई हरकतें तो आप लोग कर रहे हैं, इससे गुरेज करें, बस हो चुका। ठीक है जी, भूल मौका जाएं आप। मिलेगा। आपकी बारी आएगी, लेकिन अभी आपकी बारी नहीं है जनाब। ग्लोबल साहब की बारी है, इनके बाद आपकी बारी आएगी। ठीक है जी। भाट साहब मैं भी बैठा हुआ हूँ। जी जरूर। आप मैंने ग्लोबल बाद कर के ली। बाद आपकी बारी है बिलाल हनीफ साहब। मोहतरम भट्ट साहब, मैंने बारी कर ली, फैसला हो चुका, सिर्फ अमल दरामद का इंतजार है। कोई रिव्यू शिव्यू की बात ना थी, ना है, ना होगी। थैंक यू। सही है, ठीक हो। ठीक है जी, अभी जी मेरी बिलाल बारी साहब आप अपनी बारी बिलाल साहब की। पे बात करें। आपकी बिलाल साहब की बारी है। चले ये 112 साहब का बड़ा दिल कर रहा है, नहीं बात कर लेने दें, इसके बाद में चलो जी, उनको इजाजत मिल गई है, वो बात जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बात ये है भट्ट साहब, ये अमन नज़ीर साहब ने बात की है कि जज साहब का फैसला आ चुका, ठीक है, और जब फैसला आ चुका और उसके बाद जज साहब खुद मान चुके हैं कि उनको रिव्यू में जाना चाहिए, ठीक है, हम भी तैयार हैं। फैसला हमारे खिलाफ होया, हमने तैयार होना है और जज ने तैयार होना है। रिव्यू के लिए दो बंदों की इजाजत होनी चाहिए, जो रजामंदी होनी चाहिए, जो कि हम दोनों तैयार हैं। जज साहब भी कल तैयार, रजामंदी यहाँ पे बैठ के इस बरात में भी इन्होंने रजामंदी अपनी दिखाई है कि जी मुझे कोई मसला नहीं है रिव्यू में जाने में, ठीक है, और हमें भी कोई मसला नहीं है। हमने तो खुद अपील की है ना कि रिव्यू में जाना चाहिए। और तीसरी पार्टी जो है वो पीछे हट रही है कि नहीं, हमने अब आगे नहीं जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बात तो पूरी सुनी गई, हमारी तो बात सुनी नहीं गई। जो सुनी गई उससे तारक चौहान साहब ने आज सुबह सुबह इनकार कर दिया कि मैंने वो बात सुनी नहीं है, मतलब कि हमारी बात सुनी ही नहीं गई। जी इजाजत है। आपकी बात खत्म हुई अलियाक भाई? मेरी अभी पूरी हुई, मेरी अभी थोड़ी सी रहती थी, थोड़ी सी बात रहती है मेरी। मुझे म्यूट कर रहा है कोई बंदा, बार बार म्यूट कर रहा है, मुझे पता नहीं कौन कर रहा है। एक मिनट, अब मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे मेरी बात खत्म हुई है, कोई बंदे ने म्यूट कर दिया था मुझे। कर लूँ बात आगे भट्ट साहब? जी करें आप। जज़ाकल्लाह। रिव्यू तक। और दूसरी बात जो तारक चौहान साहब ने खुद एग्री किया है फैसला देते हुए कि ज़िया रसूल की डिमांड जो थी वो और है, ये यहाँ तक फैसला ठीक हो गया। तारक चौहान साहब ने कर दिया कि डिमांड उनकी और थी। डिमांड पूरी किसने करवानी थी? जज का काम था कि नहीं डिमांड पूरी कराना? डिमांड पूरी तो करवाओ, हमारे सामने ला के बिठाओ ज़िया रसूल को कि भाई जी इसकी डिमांड आपकी नज़र में डिमांड और थी, ज़िया रसूल की डिमांड और थी। दो चीज़ें इन्होंने साबित कर दिया। जैसे भी किया वो एक अलग बात है, वो तो गुजर गई ना, उसका फैसला इन्होंने दे दिया कि डिमांड ज़िया रसूल की बात की थी। अब डिमांड पूरी किसने करनी है? फैसला तो हो गया, इससे तो लाख रुपया बनता ही नहीं है। इस फैसले से लाख रुपया, कौन सा कानून है कि इस फैसले से लाख रुपया बन जाएगा कि डिमांड पूरी नहीं हुई, डिमांड के आगे कोई दलाल पेश नहीं हुए तो डिमांड लाख रुपया दे दें? भाई लाख रुपया तब बनता है अगर हम डिमांड पूरी ना कर सकें। हमारी नज़र में उसने डिमांड की थी जर्द रंग की, हमने जर्द रंग दिखाया। अब तारक चौहान साहब ने फैसला किया कि ये जर्द रंग वो जर्द रंग नहीं है, ठीक है, आपने वो वाला जर्द रंग साबित करना है जो मुस्लिम वाला है। अब मुस्लिम वाला जर्द रंग तारक साहब ने अपने तौर से डिसाइड कर लिया, अपने तौर पे, कि ये नहीं हो सकता ही नहीं, ये दुनिया में ये ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। हालांकि उसकी भी ममानत है, उसकी भी ममानत हमने साबित करनी है, लेकिन हमें साबित नीचे बंदा बिलकता रहा, वो काले डाल के बैठा रहा। आज भी अमर नज़ीर साहब के बकोल के तारक चौहान साहब थले जो कल हूँ रिक्वेस्टा पा रहा सी या मैसेज कर रहा सी, तुसी पढ़े ने कल तारक चौहान साहब ने कहा नहीं मैं थले मैसेज ध्यान नहीं दिता, लेकिन उसकी लोड़ भी कोई नहीं सी। सर जरूरत थी, जो चीज़ उसने डिमांड रखी थी उसको साबित करने की जरूरत थी। फैसला तो उस चीज़ का होना है कि साबित किया कि नहीं साबित किया। जब इस चीज़ का फैसला ही नहीं हुआ, वहाँ पे कोई पहली तो डिमांड ही सिलेक्ट हुई ना, पहले फैसले में तो डिमांड सिलेक्ट होगी, इनके बकौल आपके बकौल डिमांड सिलेक्ट होगी जी उसने ये डिमांड रखी थी, ये नहीं थी रखी, ठीक है, जो उसने पूरी की थी वो हमने, हमारी नज़र में वो थी, ज़िया रसूल की नज़र में वो नहीं थी। अब डिमांड आ गई, अब सबूत तो लें हमसे, वो किसने लेने हैं?
लाख रुपया तो फिर आना कि जब हम साबित नहीं कर पाएंगे। हमारे पास तो वो लास्ट में वाली ऑप्शन थी, ये वाली जो हमने कहा कि ये लास्ट में देंगे इनको, कि इनके डिमांड जो इन्होंने, और फिर बंदा को बार बार म्यूट कर रहा है यार, जो इनकी डिमांड है वो भी हम पूरी करेंगे। ये तो हमारी लास्ट वाली ऑप्शन थी। अब लास्ट वाली ऑप्शन के लिए किसने तैयार होना है? वो रिव्यू में जाननी है बात, तो फिर ही तैयार होना है ना। अब ये बात इस पे आमर नजीर साहब, ज़ियार रसूल साहब एग्री करेंगे तो रिव्यू में जाएंगे, वरना रिव्यू से पहले जो फैसला आया है वो अनकम्प्लीट फैसला है। उस पर तो हमें ना दलाल देने की इजाज़त दी गई है, ना ही कोई बात अपनी पूरी बात करने की इजाज़त दी गई है। ये बात मेरी खत्म हुई। जी अभी बिलाल हनीफ साहब आपकी बारी है या अमर नजीर साहब कर लें? आमिर भाई को बारी। बोलने दें, मेरी खैर सही। है। आमिर भाई को बोल। मुझे ना एक छोटा सा काम है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप कर लें बात। चले मैं सही। बोलता हूँ। अच्छा, मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन करना है अली हक से। अली हक साहब, कल आपने सारा मुनाजरा सुना है? वो अली हक 1122, आपने कल सारा मुनाजरा सुना है वो वाला? जी जी, मैंने जो पहली टर्म थी, पहली टर्म आखिरी तक। नहीं, आखिरी मैंने सारी सुनी है। अच्छा, अब जब कालू ने वो मैसेज किया उसके बाद उसकी बारी आई थी या नहीं थी? जब उस टाइम कमेंट बंद थे, मैसेज नहीं था किया कमेंट। ये मैसेज, ये जो मैंने मैसेज का नाम लिया, ये आमर नज़ीर साहब का सवाल था तारक चौहान साहब से कि आप जब वो मैसेज कर रहा था आपने वो मैसेज देखे थे? तारक चौहान साहब ने कहा मैं मैसेज नहीं देखता। उस टाइम भट्टी साहब ने कमेंट ऑफ किए हुए थे, रिक्वेस्ट सिर्फ ऑन थी। कालू जो था वो बार बार रिक्वेस्ट कैंसिल करके फिर दोबारा डाल रहा था कि ताकि नोटिफिकेशन ऊपर जाए कि रिक्वेस्ट आई हुई है। तो वो कह रहा है कि मैं बार बार ये काम कर रहा था कि ताकि मुझे एक बार ऊपर लें, फैसला सुनाने से पहले मेरी बात तो पूरी सुन लें। वो बात ही नहीं पूरी सुनी गई, ठीक है। इसीलिए तो रिव्यू पे जाना पड़ा। तारक चौहान साहब खुद मानते हैं कि वो रिव्यू में जाने की जरूरत है। तो बोलने दें मुझे। जी बिस्मिल्लाह करें। बात ये है भाई कि जो कमेंट है ना वो खुद ही ऑफ किए गए थे, जो मशवरा मैंने दिया था। क्योंकि जब एक बंदा फैसला कर रहा होता है ना, वो मुनसफ होता है ना, तो ये बहुत बड़ी ये सीट होती है। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, अल्लाह का डर होता है इंसान के दिल में कि कोई गलत बात ना हो जाए। तारक चौहान साहब ने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, पढ़ के फिर उन्होंने कि ये जो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ करने से रोके ना, ये भी पढ़ा है। उसके बाद उन्होंने शुरू किया। और दूसरी बात, कमेंट ऑफ होता है क्योंकि जज का ध्यान जो होता है ना वो हमेशा सुनने वाले की तरफ होना चाहिए, ना कि ऑडियंस की तरफ, ठीक है। इसलिए जब हम कोर्ट में भी बैठते हैं ना, तो आप देखेंगे जो सामने ऑडियंस बैठी होती है ना, उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ जो बंदा कटहरे में खड़ा होता है ना उसे बात करने की इजाज़त होती है। तो ये है रूल। अब दूसरी बात है, जब कालू साहब रिक्वेस्टेड डाल रहे थे ना, आपकी बात मान ली जाती है कि चले जी आओ, उन्हें रिक्वेस्ट नहीं उठाई गई, उनका ध्यान नहीं, लेकिन उसके बाद उनकी बारी आई है। और जब उनकी बारी आई है ना रिक्वेस्ट डालने के बाद, उन्होंने ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं रखी। अगर वो कोई ऐसी बात वहाँ पे रखते तो हम कहते हाँ जी जी आपकी बात ठीक है, ये है वो। नहीं बिलाल नहीं सब, ये आप बात नहीं कर सकते ना, ये आप बात नहीं कर सकते, आपका हक नहीं बनता इस बात पे बात करना। ये ना ये जज साहब का बयान जो है ना वो आपका बयान देना जैसे जजमेंट ना दें इस बात में, क्योंकि ये आपकी भी गलत साबित। जी प्यारे भाई, 1 मिनट खामोश हो जाएं, 1 मिनट मेरी बात सुने। बिलाल हनीफ साहब, आपका जो भी बयान करना है आप करके ख़त्म कर दें, फिर जिसकी बारी होगी। ऐसे मकालमा जो है नहीं, इधर बस ऐसे चल रहा है कि अपना अपनी बात। उन्होंने माइक ऑन किया। अच्छा देखें, मैंने आपने बात की, मुझे भी खिलाफ हो सकता था, लेकिन मैंने माइक नहीं ऑन किया। बात यह है कि जब कालू साहब रिक्वेस्टेड डाल रहे थे ना, उनको कोई पॉइंट ऐसा याद आ गया कि जो बड़ा वहाँ पे मुफीद हो सकता था, उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट दी गई। क्योंकि तारक साहब ने कहा था कि जब एक फरीक की बात सुनी जाएगी तो दूसरे को नीचे उतार दिया जाएगा, ताकि कोई मसला ना हो। कमेंट भी इसलिए ऑफ किए गए थे कि तवज्जो जो है वो सुनने वाले फरीक की तरफ हो। अच्छा, अब जब उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, उनकी बात नहीं एक्सेप्ट नहीं की गई, या उन्होंने अपना ध्यान दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट डाली होगी, उसके बाद उनकी बारी आई है, मुकम्मल मुनाजरा हमारे पास पड़ा हुआ है। जब उनकी बारी आई है ना रिक्वेस्ट डालने के बाद, तब उन्होंने ऐसा कोई पॉइंट नया सामने नहीं लेके आए, ठीक है। और दूसरी बात, तारिक चौहान ने नया माइक नहीं ऑन करेंगे भाई। दूसरी बात, तारिक चौहान साहब ने ये कहा है
कि अगर दोनों फरीकैन की मर्जी हुई, उनकी सलाह हुई, तो अब मेरा मुनसब का जो सीट है वो ख़त्म हो गई है। ये तारिक चौहान साहब ने बात की है। मजीद वो खुद वाजे कर देंगे, मेरा पॉइंट आ गया है कि उन्होंने ठीक है रिक्वेस्ट डालने के बाद अपनी बारी पे कोई बात नहीं की। जी जज़ाकल्लाह। अभी जी अब्दुल्ला शायद साहब भाई की मौका बारी दें। है। अब्दुल्ला साहब अपना आप मुद्दा बयान करें और दूसरा कोई भाई नहीं बोलेगा, उनको करने दें बात। जी ठीक है। जी पहली तो बात ये कि ये भी सही किस्म का तारिक चौहान साहब पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि तारिक चौहान साहब ने सुना नहीं, जबकि तारिक चौहान साहब बार बार उसको बोलते रहे। कितनी बार उसको बोला कि कानून साहब कोई बात रह तो नहीं गई, आपने कोई और बात बयान करनी है, बार बार कहते रहे। ये साफ झूठ है तारिक चौहान साहब पर। और उसके बाद ये कह रहे हैं लाख, तो लाख ना इनसे किसी ने मांगा है, ना इनको बोला है किसी ने कि आके दो। इधर सिद्धू साहब अभी भी इकरार करके गए हैं, उन्होंने पहले भी कहा है रिव्यू हो ना हो अब 7 दिन के अंदर अंदर पैसे वो देंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि तारिक चौहान साहब ने अगर उनको इल्मी दलाइल देने से मना किया तो इल्मी दलाइल देने से ज़िया भाई को भी रोका है, क्योंकि इल्मी बहस नहीं थी। वो तो जो 1122 सरकार साहब ने उनको वीडियो काट वेट कर दी थी, उसके मुताबिक वो फैसला चाहते थे। हमने साबित करना था कि ये जो काट के वीडियो दी गई है कालों को, वो गलत दी गई है, तो वो हमने साबित कर दिया। अब इनका कहना एक दिन उस वक्त यानी 4-5 घंटे इन्होंने ये मौक़िफ़ रखा कि ये वीडियो बात की है। अब ये मौक़िफ़ देने लग गए हैं कि वो वीडियो जो है वो है ही नहीं वहाँ की, वो किसी और डिबेट की वीडियो है। तो इनको खुद ही नहीं पता कि इनके पास क्या है। तो अब जो है ना सिर्फ जो फैसला हो चुका है उसके मुताबिक आपको पैसे दें, और अगर आपने फिर कोई और अलग से बात करनी है या आपने ये चीज़ साबित करनी कि उस वीडियो से पहले कोई और बात नहीं हुई, तो उस पर अलग से बात करें। जी अब्दुल्ला साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जी जी अब मौका देंगे मुझे इन दोनों की वो 1 मिनट मौका मिलेगा सबको, 1 मिनट मुझे जरा अब्दुल्ला साहब। वो जो सिंधु सियालकोटी साहब हैं वो उन्होंने इकरार किया है कि वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि 7 दिनों में पैसे देंगे। ये जो आप बोल रहे हैं कि दोबारा रिव्यू हो या ना हो, वो तो उन्होंने इकरार किया है अभी थोड़ी देर पहले इधर। नहीं बट जी जी बिल्कुल करार बिल्कुल, अभी उन्होंने जो हुआ पहले ना, भी किया। सुन लें बट सब उनका जो करार है आपको समझने में गलती लग गई है। उन्होंने पहले भी करार नवीद अच्छा, साहब के हमें सामने समझने में गलती लग रही है, मैं उनको दोबारा 1 उठा मिनट लेनी देखो, चाहिए। टोके उन ना पर करा झूठ करो, बोल टोके रहे ना हैं, करो तारिक यार, चौहान साहब भी झूठ बोल रहे हैं। टोको ना गल नू गल सुन नहीं लो। फिर हम यहाँ तो वीडियो चलाते हैं, बट सुन लो आपको जी, झूठा भी इधर से साबित करके भेजते बट हैं सब कि तारिक चौहान साहब ने उनको कितनी चुप बार कहा कराओ, है। फिर मैं गल कर लांगा। इन्हां नू चुप कराओ। 1 मिनट अब्दुल्ला साहब तुही भी चुप करो, अली हक साहब तुही भी चुप करो। हुण वारी है राजा जवेद साहब दी, तो उदों बाद ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਮੰਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पूरी गल इन्होंने राजा साहब हूँ ताड़े अली हक भाई थोड़ा सा नुक्ता दे सकते हैं बीच में, क्योंकि आपकी बारी नहीं है, उनकी बारी है बात ठीक है। मैंने बस यही बताना था कि सिद्धू साहब की आपको बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि 7 दिन तक तब मिलेंगे अगर रिव्यू ना हुआ तो, ठीक है। रिव्यू से सब पीछे हट गए, जज भी पीछे हट गए, हम भी पीछे हट गए। हम पीछे नहीं हटे,
हमने रिव्यू लेना है। चलो ठीक है, आपकी बात आ गई है, बाद में देख लेंगे अलियाक रिकॉर्डिंग में, साहब, अगर जैसे आप अलियाक बोलते हैं साहब, सही ज्यादा बात, कोई बोलने मसला से नहीं। ज्यादा बोलने से सच्चे कोई साबित नहीं होता। अपने टाइम पर बोलिए, हमें भी बातें याद आ जाती है ना। मैं ज्यादा बात करूंगा सच्चा साबित हो जाऊंगा नहीं, अपने टाइम पर प्लीज असल बर्दाश्त। में पीर साहब तमाम वो भाई, जो कॉलम को वीडियो थी ना वो इन्होंने तमाम तैयार भाई करके दी बर्दाश्त थी। करें, तमाम भाई बर्दाश्त करें, अपने टाइम पर बोलें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया ऊपर लेने का। मैं असल में दफ्तर में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। मैं अपनी ये वाली पुरानी आईडी चेक करने आया था, वो बहाल हो गई है। तो तकाजा यही है पंचायत का और फैसलों का कि ये रकम जमा करवाएं और उसके बाद जो भी इन्होंने करना है दोबारा बैठक रख लें। बस मैं नीचे बैठ कर सुनूंगा क्योंकि मैं दफ्तर में हूँ। थैंक यू। तो मुझे ना नीचे उतरना पड़ा था, अब मेरे टाइम है मेरा कि खत्म हो गया, मैंने बात करनी है जरा एक इनसे। तारक खान जी साहब मौजूद आपका हैं? टाइम बीच में आप ब्रेक कर गए थे तो आपने दूसरे को जी, दिया था, sorry। आप कर सकते हैं बात। तारक चौहान साहब से मैंने एक बात पूछनी है। जी तारक चौहान साहब, ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं झूठा, या आपने कहा है कि रिव्यू होना चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, मैं उस वक्त जब ब्रॉड पे गया ना, जब सिद्धू आपके ब्रॉड पे आया था तो वो बात कर रहा था कि जी मैंने तारिक चौहान से बात करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, वहाँ पे बात नहीं हो रही आपकी, तो मैं आपकी ब्रॉड पे आ जाता हूँ, मुझसे आप बात कर लें। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि देखें जी हम रिव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आप कर लें रिव्यू। असल बात है कि रिव्यू करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरा फ्रीक जो है वो अपने आप को भी इसके लिए वो हो। लेकिन ये फैसला जो है, देखिए ना, वो ब्रॉड शुरू जब मैं गया नहीं तो उन्होंने यही कहा, सिद्धू साहब ने वही बात की जो आपकी ब्रॉड पे की थी कि वो हमने फैसला मान लिया और हम पैसे पे करेंगे। उसके बाद ये रिव्यू वाली बात हुई। मैंने कहा हाँ, रिव्यू करना चाहते तो करें, क्योंकि मैं तो जज था उस वक्त के लिए जब तक दोनों फ्री ने मुझे बनाया था कि आपने ये स्पेसिफिक फैसला करना है। जब मैंने फैसला डिलीवर कर दिया तो मेरी जज का मनसब ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि रिव्यू की ज़रूरत है, दोनों फ्री अगर राज़ी हों, मुझे जज रखना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, किसी और को रखना चाहते हैं तो आप और रख लें। लेकिन ये कहना कि जी मैंने कहा जी हाँ रिव्यू होना चाहिए, तो बिल्कुल और बात है ना। हाँ, वो रिव्यू करना चाहते, मैंने कहा मुझे क्या एतराज़, रिव्यू करें बेशक, लेकिन ये कहना कि जी मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी तो कोई हैसियत नहीं। मेरी हैसियत उस वक़्त एक आम इंसान की थी, क्योंकि जज के मनसब से तो मैं ख़त्म हो गया था। इस वक्त भी मैं जो कमेंट कर रहा हूँ वो एक आम इंसान की हैसियत से कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे वो आए, वो कहने लगे जी नहीं हम आपको जज समझते हैं। मैं कहा ठीक है, अगर आप अब भी मुझे जज समझते हैं तो मैं कहता हूँ 1 लाख पे करें तो फिर हम बात करते हैं। तो ये वाला मेरी चीज़ सुनते नहीं है, तो रिव्यू वाली मेरी बात बार बार दोहरा रहे हैं। भाई अगर आप मुझे, वो कहते नहीं हम आपको अभी जज समझते हैं, मैं क्या मुझे जज समझते हैं तो मैं कहता हूँ 1 लाख पे करें जो मैंने फैसला कर दिया। तो उसके बाद आप रिव्यू बेशक रिव्यू में जाएं, अपनी दूसरी पार्टी से बात करें, वो करना चाहती है तो ठीक है। ये बात हुई थी मेरी। जी हाँ जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि यार इनमें कोई, अकबर खान से जरा माइक शायद आपकी तरफ से शोर आ रहा है, क्या आप में से कोई बंदा ऐसा बुजुर्ग आपने नहीं है जो आपको ये समझाए कि भाई जो बंदा जीता हुआ है वो खुद रिव्यू क्यों लेगा? अकबर खान साहब का माइक म्यूट कर दें शायद दोस्तों। जी अभी मैं करने वाला हूँ। वो तो कभी भी रिव्यू नहीं लेगा। अगर आप भी हमारी जगह होते तो कभी भी आप रिव्यू अपनी रजामंदी से ना लेते। बिल्कुल हाँ। दुरुस्त बात है, दुरुस्त। हाँ, ये हो सकता है कि आप पिछली शर्त को मुकम्मल करें, पैसे अदा करें, फिर नए सिरे से केस को पुटअप करें कि भाई ये हमारा केस था, हमारे साथ हो गया धोखा, हमारे साथ हो गया फ्रॉड, या हमें लग गई गलती, या जज साहब को लग गई गलती, या जो भी हो गया, जहां भी टेक्निकल पॉइंट रह गया है उसके लिए दोबारा आप तहरीक चलाएं, जिस तरह पहले आप चलाते थे ना। आते थे, आके कहते थे ओ 1.5 लाख रुपया कटो, 1.5 लाख रुपया कटो। हम कहते थे यार मीर साहब वाली बात कर लेने दो, आपके लाख का भी कर। नहीं नहीं नहीं, 80 लाख जुटे हैं। शक निकल गया ना, फिर शक निकलवा लेना, दोबारा ट्राई कर लेना। लेकिन फिलहाल उस मौजू पर बात करना भी अबस है कि कबल अज वक्त आप लोगों को कहें यही बात कि है हम आमिर रिव्यू नज़ीर साहब, ये रिव्यू वाली बात ये अगर हम जारी रखें तो क़यामत तक इसका फैसला नहीं होगा।
वो हम कहे जी आपने ये जो दूसरा रिव्यू किया है ना, ये इसमें ये गलती है, हम दोबारा करना चाहते हैं, फिर वो सारी उम्र ही आप लगे रहें, ये उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। फैसला हो गया है, जज गलत था, ठीक था, उसका दिमाग ठीक नहीं था, वो आपने चुना था जैसा भी अब था। आमर नज़ीर साहब रिव्यू आपकी ज़रूरत नहीं है और आपने करवाना भी नहीं है। रिव्यू हमेशा जिसके खिलाफ फैसला आता है ना वो करवाता है, जिसके हक में आता है वो नहीं करवाता, ठीक है। तो इसलिए हमारे खिलाफ फैसला आया, हमें सुने बगैर फैसला आया, हमारे केस अनकम्प्लीट हुआ है, अनकम्प्लीट है, तो इसलिए हमने बोला कि रिव्यू की जरूरत है। रिव्यू को तो आपकी जरूरत ही नहीं थी, ये तो आपकी बात ठीक है कि आपने क्यों कहना है, ठीक है। लेकिन अभी जो बात है, आप माने या ना माने, रिव्यू के लिए मानना जरूरी होता है जज का, ठीक है। तो जज ने जब आपके सामने भी करार किया कि हाँ उन्हें कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो आप बेशक ना बैठना वहां पे, जज साहब अकेले वहां पे आए, बैठे, दोबारा कोरम तय करें, रिव्यू का फैसला आज शाम तक कर लें, कल शाम तक कर लें। ये ग्लोबल साहब को चुप करें, ग्लोबल साहब चुप करें, ग्लोबल साहब खामोश हो जाए। तारक साहब ये तो अली हक भाई, ये तो फिर एक तरफा डिग्री हो जाएगी, दूसरा नहीं, अब बात पूरी सुन लेना, बात पूरी सुन लें। जब इनको जरूरत नहीं है, अगर मिसाल के तौर पे अगले फैसले की, यानी कि अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाता है रिव्यू के बाद, इनको यानी इसका बात की यही समझ आती है कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है। अगर इनको पैसा चाहिए, इनको लगता है कि ये सच्चे हैं, तो रिव्यू में आए, नहीं तो फिर ठीक है, ये अपने घर बैठे, फिर तो यकसई फैसला होगा ना। जब इनको जरूरत है, इनको लगता है कि ये सच्चे हैं, तो ये रिव्यू में साथ आएंगे। अब गलत बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आपने देना है, बाद में बातें ये करेंगे। आपने फैसला कहाँ पे कर लिया, किस बात पे फैसला किया कि किस बात का हमने 1 लाख हो रुपया चुका है, या बात कहाँ पे कहानियां अब सुना रहे खुद अपना फैसला सोच लेना। हमने कहा है कि हमने उनकी डिमांड पूरी की है, ठीक है, पूरी की है, ये आपने नहीं देखा कि कहाँ पे पूरी की है। फिर आपने डिमांड चेंज की है, आपने डिमांड चेंज की है, सुन ले, आपने डिमांड चेंज की है, और आपको ये कहना चाहिए था कि आपने डिमांड चेंज की है, तो डिमांड चेंज हुई साबित करें। हमने वो साबित करनी थी, आपने डिमांड चेंज की है उनकी, तो अब्दुल्ला भाई ये मेरे को बात करने दे। इसीलिए तो रिव्यू पे जा रहे हैं कि जब उनकी डिमांड चेंज हो गई है कि आप 1 लाख रुपया दें, तो फिर ये 2 लाख आपको पड़ता है तारक चौहान साहब, 1 लाख हमें दें, 1 लाख उनको दें, क्योंकि आपसे फैसला आप अपना फैसला ही साबित नहीं कर सकते सच्चा, क्योंकि लाख हमें दे दें, लाख हमें दे दें, लाख उनको दे दें, आप ये 2 लाख रुपया दे दें, तो यहाँ अपना फैसला सच्चा साबित कर दें। सुन ले आपने अपने पास से ये बात, एक आखिरी सेकंड मुझे तारक चौहान साहब से, आपने अपने पास से ये बात की कि इनका जर्द रंग साबित नहीं हुआ, हालांकि हमने तो साबित वहां पे किया ही नहीं था। अभी ठीक है, आ गया पॉइंट आपका। यहाँ नीचे शायद भट्टी साहब हैं, या उनको आप राइट शेयर करके बुला सकते हैं। जी मैं अभी शेयर करता हूँ अगर हुए तो। मतलब उनके सामने ये बात रखें कि ये तारक चौहान साहब को जज बनाया गया, अब जज को कहा जा रहा है कि अपने फैसले को दुरुस्त साबित करो, हमारे सामने बैठ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी कौम है। जज मलिया कनू जी ओदे फैसले दे उत्ते तुहानू एडा शक है, या ओदे फैसले ने उन्हें प्रूव करना है तुहाडे सामने बैठ के, उन्हें अपने आप को सच्चा साबित करो, जज कनू मलिया सच्चे। ये जिल्लत और रुसवाई की दास्तान बड़ी लंबी चलनी है, आप देखते हैं इतनी लंबी लाश ये नहीं आमर साहब, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उन्होंने फैसला हमारी दलाइल सुने बगैर अपने पास से किया ना, हमारी तरफ से फैसला किया, हमारी तरफ से नहीं। अगर हमारी नहीं सुन लेना, हमारी तरफ से कोई बंदा फैसला कर रहा है, हमारी तरफ से कोई बंदा फैसला कर रहा है, हमारी सुने बगैर फैसला कर रहा है, तो पैसे का जिम्मेदार वो बंदा होना चाहिए, वो बंदा होना चाहिए ना, अमर साहब वो बंदा खुद होना चाहिए। अब्दुल्ला चुप कर जा, तारक चौहान ने कोई 70 बार कहा है, अब्दुल्ला खामोश हो जा। तारक चौहान साहब ने हमारे केस की खुद जिम्मेदारी इम्तियाज साहब मेरी गल सुनो, तो पैसे की जिम्मेदारी कौन है? अमर नजीर साहब आपने कहा ये कैसी कौम है, ये मिर्जा महमूद की कौम है जो कहता था 4 गवाह लेके आओ। हेलो जी, मेरी बात सुनो इम्तियाज साहब, मेरी बात सुनो, बच्चों जैसी बात ना करें। बुलाया 70 बंदे नीचे बैठ के सुन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको सुने बगैर फैसला कर दिया गया। तीन बार सुन ले, सब्र करें, सब्र करें। 3 बार जज ने दोनों फरीकैन को सुना, 3 बार।
आप कह रहे हैं सुने बगैर फैसला कर दिया। वो आपको उन्होंने बताकर बोला रोक नहीं आ रहा। आज नहीं, सुन ले, मैं बताता हूँ आपके सामने। उन्होंने बोला कि मुझे उन्होंने ये बात नहीं बताई। ये आज उन्होंने क्या? आपके सामने ये बात बोली है ना कि मुझे उन्होंने ये क्या? बात नहीं बताई जो आप बता क्या रहे नहीं हैं। बताइए, हालांकि क्या नहीं बताइए? कि ये ऑडियो जो है, ये जो ऑडियो है, ये इस मौजूद ओ इस भाई टाइम की इम्तियाज नहीं है। साहब, सुन ले, ये सुन ऑडियो ले, मेरी बात बात सुन ले, सुने बात सुन यार, ले ना। ये वो जो ऑडियो के बारे में सवाल था, वो जो जवाब दिया कालू ने, तारक हाँ। चौहान साहब खुद कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की हुई है फिर क्यों हो गया नहीं आपकी बराबर पे। सुने? सुन ठीक है, आगे हाँ, मैं समझ गया तो क्या जब कहना उन्होंने चाह रहे हैं। सुने तो अभी सही आपसे ना। कैसे कह रहे हैं कि आप भाई, सॉरी सुने। क्या को सुना है, हाँ। आप कैसे कह सकते हैं दो इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब मैं मेरी कैसे बात कर सुने। हमारी तरफ से तारक चौहान साहब ने खुद यार फैसला बात- दिया है, हमारी यार तरफ से इम्तियाज खुद फैसला दिया है, हमने हाँ, ठीक है। रखी नहीं है फैसले में, अब माइक हमारा म्यूट करें ना, फैसला आपके रखा ही नहीं है। और सिग्नल आपके रेड हो गए सर, माइक म्यूट कर लें 1 मिनट और सुन लें बात। मैं हैरान हो रहा हूँ आपकी इस इस्तदलाल पर कि आपको सुना नहीं गया। आपको 3 बार सुनने के बाद जो फैसला सुनाया गया, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि फलानी ऑडियो नहीं पेश की जा सकी, फलाना सफ़ा नहीं पेश किया जा सका। भाई आप कहाँ जिंदगी गुजार के आए हैं? अदालत में जज के सामने जो शवाहिद, जो गवाहियां, जो सबूत पेश किए जा सकते हों या पेश किए गए हों, अदालत उसी पर फैसला करने की पाबंद होती है। अगर वहां पर शवाहिद असल कातिल के खिलाफ आपके पास नहीं है, आप कातिल को फांसी नहीं दिलवा सकते। और अगर बेकसूर के खिलाफ आपके पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि अदालत मजबूर हो जाती है कि हाँ इसके खिलाफ फैसला है, तो बेकसूर फांसी चढ़ जाता है। आपको ये पता नहीं है कि जज के जो जिम्मेदारी है, जज की ये जिम्मेदारी है कि उसने वो बातें देखनी है जो जज के सामने आपने पेश की है। ठीक है, उसके बाद आप कहते रहे, मेरी सुन लेना, रिपीट कर रहे हैं, उसके आप बाद- रिपीट कर रहे हैं बात को। मुकम्मल कर लेने दो, बात तो मुझे मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद जब जज फैसला कर चुके, आपको कोई मुक्का याद आ जाए तो वो हमेशा अपने मुंह पर मारा जाता है। भाईजान, आपने जो शवाहिद आपके पास थे, आपने जज को पेश किए हैं और आप जज के 15 मिनट के ब्रेक के दौरान इंतजार करते रहे हैं कि जज अभी 15 मिनट के बाद आएगा, हमारे हक में फैसला सुनाएगा। अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ था जिस तरह का आप ड्रामा कर रहे हैं कि कल उनको दोबारा कह रहा था मुझे चौथी बार भी ऊपर लें और उन्होंने नहीं लिया, तो उनका टेलीफोन नंबर भी था, चौहान साहब को फोन कर लेना था कि ये आखिरी टर्न में ऐसी हेराफेरी हो गई है, फैसला ना कीजिएगा जब तक मुझे ना सुनिएगा। ये सारी जितनी बातें हम कर रहे हैं फजूल हैं। अब सुन तो लेना। एक मिनट बात तो सुन लेना, 1 मिनट और यार बात तो सुन लें, आखिरी बात मेरी सुन लें। अभी मैं भट्टी साहब को यहाँ बुलाता हूँ, वो भट्टी साहब आपको कहेंगे कि अगर तारक चौहान को आपने जज मान लिया, तारक चौहान आपको एक टर्न भी ना देता बात करने के लिए, बगैर सुने भी फैसला दे देता, तो भी आप शिकस्त हो रहे थे। आपको वो फैसला तस्लीम करना होना चाहिए। ये कैसी बच्चों जैसी आप बात कर रहे ठीक हैं? है, अब सुन लेना, आपकी बात कंप्लीट हो गई है, सुन ले। बात ये है कि ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि हमें कुछ बाद में याद आया, वहां पे मारा नहीं था, उस बात की ये तस्दीक कर चुके हैं, क्या नाम है इनका, तारक चौहान साहब, कि मैंने वो कसून देखा ही नहीं है। हालांकि वो वीडियो में मौजूद है कि वो कसून कालू ने मारा हुआ था, वो कसून को इग्नोर कर गए हैं सिग्नल की वजह से। यहाँ कोई मैं साबित कर सकता हूँ वीडियो प्रूफ के साथ। ये इल्जाम लगाने के लिए ही आपने कल तारक चौहान साहब को अपनी बरात पे 2 घंटे बैठाया था कि कोई इल्जाम मिल जाए इन पर लगाने के लिए। नहीं सुन ले, ये आपकी बरात है, सुन ले, आपकी बरात थी, आपने सवाल पूछा था या आपने बोला था कि ये बात जो कालू आजकल कर रहा है तारक चौहान साहब, ये आपको कल उसने बताई थी, मैंने दोबारा रिपीट नहीं की, सुनी ऑडियो सुनी, तो आपको ये बात उसने बोली थी। तारक चौहान साहब ने म्यूट करियो बात साहब, तारक चौहान साहब ने ये बात ये क्या आपको ये क्या फायदा इन बातों का करने बट का? साहब आपने क्या कॉल उठा रहे हैं फुल रीजन आपने खुद अभी बात, लेकिन आपने आधा घंटा नजीर साहब की आधा घंटा में नजीर साहब की सुन के, तो नए नए नुक्ते निकालेंगे इसके ऊपर सारी उम्र की जब तारिक चौहान साहब ने कालू को कहा था कि अपनी आखिरी स्टेटमेंट दे दो, आपने फिर हमारी तरफ से फैसला किया ना, उसने उसके बाद
उसको याद आया। भट्ट साहब वन ਹੁਣ मैन ਜਾਂ की ਕਿਸੇ कॉल ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ उठाएं। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ तो दो बंदे की गल करनी ना सारे की कॉल ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ सिर्फ ਹੁਣ ਗੱਲ भट्टी ਨਹੀਂ साहब करना ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਰ ਭੱਟੀ ਲੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ भट्ट साहब वन मैन दी चुकी योर रिक्वेस्ट। वन मैन ने आके पता नहीं केड़ी क्लाशन को चलानी है ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਮੈਂ ਲਓ ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਰੋ, ਜੱਜ ਕਰੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ठीक है दूसरी साहब आपका काम ही नहीं है यहाँ पे कहलों और ज़ियार रसूल को बात करनी चाहिए। आपका ये काम ही नहीं है। आपको जो फ्री कहने उनको का बात करनी चाहिए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तारिक चौहान साहब असल में ना वो वीडियो जो है ना वो काट पीट कर इसने ओ दी थी, प्यारे इसमें भाई इसको ज्यादा जान सब मसला है। बारी बारी बात करें मिक्स हो जाता है इस तरह कोई मजा नहीं है किसी को। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਐਸਾ ਪਾਓ, ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਐਸੇ ਪਾਓ, ਰੌਲਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪਾਓ। ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਓ। ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਰੋਲਾ ਪਾਲੋ ਰੋਲਾ ਇਹ ਪਾਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਲੋ ਗੈਰ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ नहीं होने देनी सही बात है कि जो बंदे हैं वो बात तो करें तो ठीक है। ऐसे कोई लोग क्या आ रहा है अब आप कुछ बात करके जाएंगे आप बात में मुकर जाएंगे ये बात नहीं है ਮੈਂ कोई। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਚਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਬੱਚਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਕੀਦ ਗਲੋਬਲ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 100 ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੌਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਐਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਹੈ। ਲੈਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ 5 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ आ गया ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ये फैसला आ गया आप ये करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है बस ये है ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ नहीं है तो सीधा सीधा इल्जाम है ना कि सानू सबूत पेश नहीं करने दिते गए तो सीधा सीधा इल्जाम है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ इतना मौका देता हाँ, कल कोई- इतना 3 घंटे की हीयरिंग हुई है सब ਨੂੰ मौका देता है ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਕੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਪਾ ਦਿਓ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਕਿਸੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮ में लेकिन ये यार- 1122 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮ है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਟ ਪਿਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ
अपने ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਸਮ ਬਾ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲੋ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੋ हाँ ਖਤਮ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੇਕਿਨ अब देखे ना ये मेन मेखे तो आप सारी उम्र निकाल सकते हैं, ये फर्ज देता फलाना कर देता, वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, फिर रिव्यू आएगा फिर आप ये करेंगे आपके खिलाफ ਸਾਨੂੰ फैसला ਇਹਨਾਂ ਦਾ आएगा। ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ, ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫ- ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਾਕੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੋ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੰਨਦਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਕਲੀ ਔਰ ਇਲਮੀ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ये इल्मी तो है ही ਵੀਡੀਓ नहीं, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ है ਕੀਤੀ ही नहीं थी। ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਦ ਰੰਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। बिल्कुल ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਈ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਕੀਤੀ 1122 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਨਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਲੱਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੌੜ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕਹਿਲਵਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਟੰਗਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੂ ਕੇਅਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਾਕੂਲ ਹੋਣ, ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ सियालकोटी साहब आ गए ने, उन्होंने आज ही पैसे दे देने कि जान छुटे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਲਮ ਗਲੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਲਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ये मेरा कसूर है ये कि ਕੀ मैं ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਸ਼ੌਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਜਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ग्लोबल भाई सलाम वालेकुम। ग्लोबल भाई जी मोहतरम एक बात कहूँगा, नाराज तो नहीं होंगे? नाराज करने वाली करेंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो हाँ है तो नाराज वाली बात, थोड़ा सी तल्ख बात है। कर लो, चाहो तो करूँ नहीं तो नहीं करता।
चले मीठा मीठा करके कर दें, कोटी शुगर कोटेड कर दें। वो है ही कड़वी बात ना भाई। अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैंने बताइए। कोशिश कर रहा हूँ, पानी शानी पास रख लेता हूँ, आप करें। हाँ तो इजाजत है यानी। हाँ भाई जी पीर साहब आप जी बहुत इजाजत है पीर साहब आपको। भाईजान देखें, आप में थोड़ी सी जो है सख्ती आ गई है, थोड़ा नरम हो जाए भाई। बात ही हो रही है, जंग थोड़ी चल रही है। बात ही से बात हल होती है भाईजान। केस हार चुके हैं वो, अच्छी तरह से वो जानते हैं। दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी महसूस नहीं कर रहे। कहते जज साहब ने हमारी सुनी ही नहीं। यानी कब तक सुने? 2 साल तक सुनाते रहोगे जज साहब को? तो घर चले जाओ, 1 हफ्ता वहां रहो और पूरी सुनाओ भाई। 3 घंटे जज साहब ने सुना, 3 मौके दिए और आखिर में पूछा और कुछ ऐड करना है, और कुछ कहना है, यहां तक कहा। अब क्या करें? कहते हमारी सुनी ही नहीं। तो इतना बड़ा झूठ क्या करेंगे ऐसे कौम के साथ? वो हार चुके हैं अपने केस। अब ये कह रहे हैं कि क्या कह रहा है अपना 1122, 2 लाख रुपया देना होगा किसको? चौहान साहब को। एक इनको दे दो, एक उनको दे दो। वजह, चौहान साहब को आपने सेलेक्ट किया, किसी ने आपको जोर दिया था ऐसे करो? आपने खुद कहा, उन्होंने मुकम्मल सुना, उन्होंने फैसला दे दिया। अब नहीं, अब वापस रीओपन हम करेंगे। हम भूल गए थे भाई। यही तो है, थोड़ी सी भी भूल अगर हो जाए वाकईतन तो आपके हक में वो केस नहीं होगा, आप हार जाएंगे। जब आप इतने बोले हैं, जानते ही नहीं, वो पता नहीं कौन था, एक मसले पे गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा आमिर नज़ीर साहब तो इस तरह से आदमी से वो बात, जब इंसान बोल जाता फिर उसको पकड़ लेते। भाई बात यही है, आपने बोला तो पकड़ी जाएगी ना। ये लोग मेरे भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि ये केस हार चुके हैं। अब फिर करेंगे, फिर हार जाएंगे। मैंने इनको 6-7 महीने पहले ही बता दिया था, जब इन्होंने छेड़ा मसले को। सिद्धू को मैंने, क्या नाम है अपना, ये कालून को मैंने कहा था केस तुम्हारा बहुत ही तुम्हारे खिलाफ है, जहां लेकर जाओगे तुम्हें, तुम्हारे मुकद्दर में हार होगी, इसको छोड़ दो। लेकिन गालियां दी इन्होंने, सब मिलके एकमुश्त गालियां देने लगे। और वो गालियां दी, वो जट है ना, वो शलवार निकाल के गालियां देना शुरू कर दी। मैं खामोश हुआ। फिर सरदार आला के बरोड पे फिर मैंने इनको समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। अब इनके अपने एक अहमदी चौहान साहब, उन्होंने फैसला दिया, फिर भी कहते नहीं फिर सुनो। अच्छा इसमें फिर सुनो हमारी, फिर ये हम भूल गए थे, वो हम भूल गए थे। भाई अपने किस्मत पे रो, तुम अगर भूल गए थे, पेश नहीं किया। भाई चौहान साहब ने पूछा या नहीं पूछा आखिरी बार में, और कुछ ऐड करना है? दोनों से पूछा, कहा नहीं, बात खत्म हो गई। और बाद में जब चौहान साहब ने ब्रेक लिया 10-15 मिनट का, वहां गुफ्तगू भी चलती रही, तो किसी कोई इंतजार करते रहे, सब्र की तलकीन की। वो जो जिनका बरोड था वो भांप लिया था कि हम लोग केस हार चुके, वो सब्र की तलकीन कर रहा था कि अब जो भी हुआ फैसले का हम इंतजार है, चौहान साहब आएंगे, फैसला दे देंगे। और तुम लोगों को क्या चाहिए? अल्लाह के बंदो, पैसा दे दो, इसी में तुम लोगों की इज्जत है। हाँ, कि आपने बात की और उसको मान लिया, खत्म। आगे अगर आपने कोई और फैसला, तरफेन जो है वो उस पर राजी होते हैं और कोई और फिर से इसको खोल लेते हैं, वो ठीक है। नहीं होते, बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है। पीर साहब मैं आपसे इस बात का माजरत हूँ, अगर आपको लगा कि हमारे लहजे में सख्ती है, हम अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। आप यकीन करिए, हमें उनकी बात से जो वो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि उनको इस बात करनी नहीं चाहिए थी। ये माकूल रवैया बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारे भाई हैं जो भट्ट साहब हैं, इनके साथ मैंने थोड़ा सा इसलिए कहा है क्योंकि मेरा इनके ऊपर मान है बहुत ज़्यादा, कि ये एक ऐसे बंदे को बैठा के 1.5-2 घंटे से वो लगा हुआ है इधर की पंबीरी उधर कमाने और उधर की इधर कमाने, और कभी जज पे फाइन डाल रहा है, कभी सुनने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिन बातों का कोई तुक नहीं है। और जो जामन है उसकी बात को भी रंग चढ़ा के कर रहा है। ओ भाई, तुम्हें राइट किसने दिया? तुम्हें इस बात का राइट किस बंदे ने इस बात का राइट दिया हुआ है कि आप ये इस तरह की बातें करो? हमें भी राइट नहीं है। हमें इस बात का राइट है कि हम जाके आप दोस्तों की बातें सुनते हैं,
हमें सिर्फ सुनने की हद तक है, हम ना आलम है ना कुछ और है, सुनते हैं और आप हमारी राय ले लेते हैं कि भाई सुनने वालों आपको कैसी लगी ये बात, हम कह देते हैं भाई ऐसी लगी, इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए, जज ने अच्छा फैसला दे दिया, जज ने इस चीज़ को कंसिडर किया, इसको नहीं किया, आज का मौजू बहुत अच्छा रहा। हम तो और किसी बात में नहीं आते। बाकी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कभी कर लिए, भट्ट साहब की मेहरबानी है कि ये मेरे ऊपर भी एतमाद करते हैं जैसे बाकी आप सब दोस्त करते हैं, तो ये इनकी मोहब्बत है। यकीन करिए हम किसी के साथ भी पीर साहब बिल्कुल भी नहीं सख्त रवैया अपनाना चाहते, हम तो हिदायत की दुआ करते हैं। जी बहुत बहुत ग्लोबल शुक्रिया साहब, पीर थोड़ा साहब, सा मौका दे मुझे भी मजीद नरमी पैदा करेंगे पीर साहब। अपनी बात ऐड करने की। तारक चौहान साहब, आपके पोस्टर तकसीम हो रहे हैं, आपकी मशहूरी हो रही है मुफ्त में, जज़ाकल्लाह। आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। देखें ग्लोबल जी जी जी, मैं खामोश होता हूँ, म्यूट करता हूँ। जितनी मशहूरी मेरी करेंगे ये इनकी अपनी बेइज्जती है, क्योंकि इन्होंने तो मुझे जज बनाया था। अजीब बात है। 1 to 1 भाई, जितना वो ज्यादा बोलेगा ना उतना ही अपने नजरों से गिरेगा और सुनने वालों के नजरों से गिरेगा। वो अपनी शख्सियत को खराब कर रहा है झूठ बोल के, कोई अच्छा अमल नहीं कर रहा। उसका दिल भी जानता है गलत कर रहा है, उसके सुनने वाले भी जानते हैं, उसके हम मसलक भी जानते हैं। तो वो जितना अनाप शनाप बोलेगा ना उतना ही लोगों के नज़रों से गिर जाएगा। और दूसरी बात कि उसको हक नहीं है। वजह मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तमाम भाई जानते हैं, ये सब एक हैं। कौन कौन? सिद्धू, कालून, 121122, ये सरकार, ये एक ही इनका एक जो है, ये दोस्त हैं आपस में, इनका अलग एक मिशन है। और इनका सबसे बड़ा जो काट कूट कर इधर उधर करके और रात को दिन बनाना और दिन को रात कहना, ये कौन करता है? इनका लाल मुजक्कड़ जी, यही 1122 है। समझ रहे? आप इसके साथ कोई भी बात करें दिन के बारे में, बस इसको बात ऐसे करता जाएगा कहेगा नहीं ये तो रात है, दिन नहीं है। इसका काम क्या है? रोड पे बैठना, अभी भी बैठा होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। क्या करेगा? रिकॉर्डिंग करेगा, फिर रिकॉर्डिंग को जाकर क्या करेगा? तरोड़ मरोड़ के ये और उस पर बहस। और ये है सिद्धू जी हैं, कालून है और जट है, वो जो शलवार निकाल के गालियां देते, ये सब एक है। इसको तो दुख हो रहा है क्योंकि इन्होंने तो उकसाया है उसको इस केस को खोलने के लिए। समझ रहे? यही जट वगैरह, यही उन्होंने उकसाया है और कोई नहीं है इनको उकसाने वाला। तो ये है वो बात, समझ रहे भाईजान? तो इसको हक है बोलने का। जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही लोगों के नजरों से, अपने लोगों के नजरों से, दूसरों के नजरों से ये गिर जाएगा। कोई अकलमंदी की बात इसने की है? कहते हैं 2 लाख देना होगा चौहान को, एक हमें दे दो और एक किसको दे दो? ज़िया रसूल को। ये कोई करने वाली बात है? एक छोटी सी बात पूछ लो आमिर चौहान, आमिर नजीर भाई से, अगर आप बुरा ना माने तो फिर पूछूंगा। आमिर नजीर भाई तशरीफ रखते हैं। पूछे जल्दी, मैं नीचे उतरने लगा। आमिर भाई बस छोटी सी बात ये है कि इन केस के हम केस हार गए होते तो आप क्या करते? नहीं हार गए होते, हम पैसे देके तो बत्ती भी जाके सो जाते हैं। बात खत्म, बस इतनी बात है। बस ये बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही, ये आला इखलाकियात होती है। हार जीत जो है वो मुकद्दर में जिंदगी के साथ चलती है। केस हारता भी है, बंदा जीतता भी है। आप लोग हार गए हो तो ठीक है, बात खत्म हो गई है। देखिए ऐसे ही है जैसे आप कुश्ती करते हैं किसी के साथ, तो कुश्ती में आप हार जाते हैं, आप कहते हैं अगली दफा मैं ज्यादा तैयारी से आऊंगा। आप ये नहीं कहते कि ये नहीं, इसने ये कर दिया, फलाना कर दिया, मुझे याद नहीं आया, ये ना रिव्यू करें। शायद भट्ट साहब, बात ये है कि तारक भाई की उन्होंने फोटो लगाई हुई है तैर ने, वो तैर को जानते हैं मरदई को। मैंने आपको फोटो सेंड किया उसकी तैर की, तो मेहरबानी करें जरा वो लगाएं। नहीं भाई ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता भाई। हमने हमारा मुकाबला नहीं है, उनको अपनी नहीं, उसको पता तो चले कि हमारे पास भी फोटो है उसकी। नहीं काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, छोड़ दें, दफा कर। ये मुतफिका फैसला है ह्यूमैनिटी वो भाई उसकी साहब शक्ल को दिखाएं थोड़ी सी, बंदों का कैसा है। तारक भाई कबड्डी की बात आजकल करते हैं, बादाम खाते हैं इसलिए कबड्डी की बात करते हैं। भट्ट साहब दूसरे दोस्तों ने मौका दो, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो ग्लोबल भाई, आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह।
अच्छा शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। लेकिन आपके माँ बाप ने नहीं की, आपकी वाइफ ने की है। चले ऐसा ही होगा बट साहब, जो भी है हो तो गई ना। ये बात है कि तरबियत शो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बट साहब, दूसरे दोस्तों को मौका दें, ये मुनासिब नहीं है कि मैं जरूर ज्यादा देते हैं, क्यों नहीं। तो बट साहब आपने बाकी चीज ये क्या तो उन्होंने बात ही की, आपने नीचे उतार दिया। वो खुद ही बोल रहा था कि मुझे नीचे उतार दे, मैंने तो नहीं उसको बोला था कि नीचे जाए। इसमें तारक भाई मेरी तो गलती नहीं है, उसने खुद ही बोला है। आप बेकसूर हैं। और शाहिद भट्ट साहब वो हर साल बोलता मुझे नीचे उतार दे, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हेलो फिर आई उत्ते ले लेने अजे नहीं मकसद ਉਹਦੀ ਤਰਬੀयत बहुत अच्छी हुई है। अच्छा बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जब असूल जो है ना, असूल वो ये है कि ये अपनी हर बात में झूठे हैं। सबसे पहले ये कहते कमेंट ऑफ किए। मैंने कहा कि जब ऑडियंस सामने बैठी होती है ना कमरा अदालत में, तो ऑडियंस को कहा जाता है कि आपने खामोश रहना है, और जो दो पार्टियां होती हैं ना वो आपस में बात करती हैं, और जज उन्हें इजाज़त देता है कि आप बोले और अब आप बोले। कल बिल्कुल वैसे हुआ है। तारक चौहान साहब ने एक जो दो पार्टी मुखालिफ थे, पहले एक को नीचे उतारा, दूसरे की बात सुनी, फिर दूसरे को नीचे उतारा, पहले की बात सुनी, उसके बाद फैसला दिया। लिहाजा ये कमेंट वाली बात होगी गलत। दूसरी बात, उसने कॉल की या उसने मैसेज किया, जो भी उसने किया, उसके बाद उसको टाइम मिला, उसका काम था कि तब वो बात करता जो वो कॉल डाल के करना चाहता था। नंबर 3 बात ये है कि जो रिव्यू की बात है ना, अब ये भी सुन लें, रिव्यू लेना है या नहीं लेना, ये भी फैसला इनको बढ़ा कर है। जज जो है वो फैसला कैंसिल भी कर सकता है और फैसला एक्सेप्ट भी कर सकता है कि हाँ मैंने रिव्यू लेना है या मैंने रिव्यू नहीं लेना। या ये जो भी है भाई, इसको बट साहब ये बंद करते हैं, छोड़ दो ये दफा करे, हमने ये काम नहीं करना भाई। पहले बट साहब बंद कर दे इसको भाई। मैंने नहीं लगाई है, किसी और भाई ने लगाई थी भाई, किसी और ने लगाई है, प्रोफाइल पिक्चर है। जो रिव्यू का फैसला होता है ना, वो भी तारक चौहान साहब जज की मर्जी होती है, वो उसको माने या ना माने। ये बंद कर दें, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई मुश्किल। ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने रिव्यू के लिए दरख्वास्त जमा कराते हैं अदालत में। मैं चूंकि मेरा सरकारी इदारे से ताल्लुक रहा है, मैं जानता हूँ। अब ये जज चाहता है रिव्यू लेना या वो उस दरख्वास्त को कैंसिल कर देता है, ये जज के ऊपर डिपेंड है। मैं जज है ही नहीं, जब फैसला डिलीवर कर दिया उसके बाद जजी से मैं मादूर हो गया। अब दोबारा ये है तारक भाई, जज से जजी बन गए हैं, छोटी सी जजी हो गए हैं। वही ना। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ? वो तो मेरी भी लगाई हुई है, मेरी पसंद होएगी उन्होंने। कोई खेड बनने लगी है तारक साहब। यानी खुद ही सोचो कि मुझे जज बना के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं खुद ही। अब अपने ही मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेरा तो अपने आप को जलील कर रहे हैं। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਦ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ मंगवा लो रवे तो। और मजे की बात यह है कि तारक चौहान का नाम पेश करने वाला बतौर सालिस ये खुद कालू है, जिसने कहा था